Assalamu alaikum. I'm your host Zainab Asam. So today we will learn about SMTP. Before that, we have to make an business email via our hostinger or other hostings. So you can see at the very left side there are different options have been given. So we have to move toward the emails. So you can put any name here for emails, and at the end there will be the domain name provided by default. So you can put info support any you can create so many emails, okay, like info support inquiry or other as required by the client. So now I'm going to put here right now inquiry, okay. And then we have to put the password, and the password should meet all the requirements, like there should be uppercase, lowercase, characters, symbol, and that's it. So now let's click the button create, and it has been created. So just skip this option, or you can also choose browser. Okay, from now here you can see that there is a button of webmail from where we can move toward the webmail, and just we have to put that email username and password there, and this is just as simple. I have two emails right now, info and inquiry. We can also copy it from here. So I'm going toward the webmail, and now I'll put my password as it is I have given in the panel and just logged in. And here I have logged in. You can just see the panel of webmail. मैंने webmail पे अपना email account बना लिया है. यही वो ईमेल है जिसे हम अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे और अपना सारा डाटा यहाँ पे लेंगे. यू कैन सी हियर द ऑप्शन ऑफ इनबॉक्स, feedback, log out. From here you can log out. So whenever the client send the data, we will have it in the inbox, and you can see at the very top refresh options, select, everything is here. Okay, we have done our one step. First step is done. That was just to create the email. Our email has been created. Now come back toward the panel. Okay, now we have to take the outgoing server from the hosting, which we have to put in the SMTP settings at the website, so that एक SMTP connection बन जाए सेंड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें हम जो डाटा है वो अपने उसको सेंड कर सकें क्लाइंट को. Okay, I'm just showing you the panel overview, WordPress, hosting plans, emails, domains, everything is here regarding to website. So for taking the outgoing server, we just have to move toward the connect apps and devices. For this email, we are using inquiry. Okay, connect apps and devices. We have to connect our website, and we will take outgoing server from here. You can see here the protocols. We will learn about all these things. What is SMTP? What are protocols? Firstly, we have to see where the protocols are. We have to take the outgoing server for SMTP. As we are doing SMTP send mail transfer protocol to our website, so हमें उसके लिए क्या चाहिए होंगे, outgoing server. उसमें हमें होस्ट नेम यहाँ से कॉपी करना है और पोर्ट लेना है, दैट इज़ 465 फॉर SSL, and for TLS might be it is 580 or 578, I am not confirmed. हम SSL के लिए ही इसको पिक करेंगे, एंड दैट इज़ 465. बाकी सर्वर से हमारा कोई काम नहीं है. फर्स्ट पे इनकमिंग है, लास्ट पे भी इनकमिंग है, POP, IMAP हमें ये नहीं चाहिए. हमें जस्ट आउटगोइंग सर्वर्स चाहिए. उसमें होस्ट नेम एंड देन पोर्ट नेम, दैट्स इट. SSL को लेंगे हम, पिक करेंगे, और अगर हम TLS को करते हैं तो दैट इज़ समथिंग अराउंड 587 मे बी. बट फॉर नाउ एट द टाइम बीइंग वी आर यूजिंग SSL. ये जस्ट आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ कि आउटगोइंग सर्वर को हम अपनी होस्टिंग से किस तरह से उठा सकते हैं. तो होस्टिंग पे हमारे 2 स्टेप्स होंगे. एक अपनी ईमेल आईडी को क्रिएट करना, बिजनेस ईमेल को, एंड द सेकंड स्टेप अपना आउटगोइंग सर्वर देखना कि हमारा आउटगोइंग सर्वर होस्टिंग पे क्या है. कीप इट इन योर माइंड, दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट होस्टिंग्स. होस्टिंगर के लिए ये है, GoDaddy के लिए कोई और होगा. ठीक है,
तो keep it in your mind, the hosting server will be different for different hostings. So 2 steps are done, email is created, okay, and now just have a look at SMTP. What is SMTP? हमने hosting से जो काम करना था वो हमने कर लिया, उसमें 2 steps आए, email create की, and then we have seen what are our outgoing servers. Now let's see कि what is SMTP. SMTP क्या होती है, फॉर्म क्या होता है, हम किस तरह से कनेक्शन बनाएंगे फॉर्म का SMTP के साथ, क्या इंस्टॉलेशंस करेंगे, किस तरह से हम प्रोसेस करेंगे कि हमारा फॉर्म का डाटा हमारी उस ईमेल में आने लग जाए जो हमने क्रिएट की है. ओके, टेक दैट कॉन्सेप्ट. तो व्हाट इज़ फॉर्म? फॉर्म हम यूटिलाइज करते हैं या यूज़ करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए. वी गैदर डाटा थ्रू फॉर्म्स. मतलब एक क्लाइंट वेबसाइट पे आया, उसने ऑनर की तरफ कुछ डाटा भिजवाना है कि भाई तुम्हारी कौन कौन सी सर्विसेज हैं, व्हाट सर्विसेज यू आर यूजिंग एंड रेस्ट क्वेश्चंस. तो वो अपना वहाँ पे फॉर्म फिल कर देगा. वो फॉर्म जो है वो या तो उसका डेटाबेस में जाता है या फिर ईमेल में, इस तरह से वेब मेल में या ईमेल्स में जाता है. तो हेयर वी आर डूइंग SMTP थ्रू वेब मेल. सो फॉर्म बनाने के लिए डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं हम वर्डप्रेस में. WP फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है, एलिमेंटोर प्रो है. WP फॉर्म कुछ वेबसाइट्स पे यूज़ हो रहा होगा, कुछ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 यूज़ हो रहा है, कुछ वेबसाइट्स पे एलिमेंटर प्रो के थ्रू फॉर्म्स बने होंगे. मतलब आप इन तीनों प्लगइन से फॉर्म्स बना सकते हैं. इन फ्यूचर आपको इनके बारे में आइडिया इसलिए दिया जा रहा है, अभी तो हम अपनी वेबसाइट पे जो प्लगइन फॉर्म बनाएंगे वो एलिमेंटर प्रो को ही यूज़ करके बनाएंगे. बट इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि आपको WP फॉर्म के थ्रू कोई फॉर्म बनाओ, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 के थ्रू बनाओ, तो आपको ये आइडिया हो कि ये प्लगइन्स भी यूज़ हो सकते हैं. दे आर जस्ट सिंपल एंड दे आर जस्ट सेम लाइक एलिमेंटर प्रो. जैसे हम एलिमेंटर प्रो पे फॉर्म बनाना सीखेंगे वैसे ही हम इन्हीं प्लगइन्स के थ्रू बना सकते हैं. यू जस्ट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म कि हम डिफरेंट फील्ड्स यूज़ कर रहे हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो हमें रिक्वायर्ड है क्लाइंट से. ठीक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट डिमांड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ SMTP. SMTP क्या होता है? इसमें हम एक कनेक्शन बना रहे होते हैं फॉर्म और मेल के दरमियान, ताकि फॉर्म का डाटा मेल पे जा सके. एब्रीवेशन ऑफ सेंड मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं जो डाटा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. कंप्यूटर स्टूडेंट्स को तो पता होगा, उन्होंने स्टडी किए होंगे इन ब्रीफ. सो प्रोटोकॉल्स के लिए आप यही कॉन्सेप्ट रख लें कि हम डाटा को सिक्योर करने के लिए इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं. तो SMTP इज़ अ प्रोटोकॉल टू सेंड मेल ट्रांसफ़र. ठीक है, ये वो वाले प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे. इस जस्ट अ प्लगइन जिसको हम इंस्टॉल करेंगे और इजी इंस्टॉलेशन और इजी प्रोसेस के थ्रू हम अपना डाटा फॉर्म के थ्रू वेब मेल्स की तरफ सेंड कर देंगे. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द वर्डप्रेस पैनल. यहाँ पे हम प्लगइन को सर्च करते हैं कि हमें कौन सा प्लगइन रिक्वायर है फॉर SMTP. WP फॉर्म का भी एक दफ़ा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि WP फॉर्म का कौन सा प्लगइन है, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 का कौन सा प्लगइन है, ताकि आपको फ्यूचर में थोड़ा सा इजी रहे कि आप इन पर भी काम कर सकते हैं. बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर यूजिंग एलिमेंटर प्रो फॉर मेकिंग फॉर्म्स. सो लेट्स चेक WP फॉर्म. यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 भी आपको शो हो जाएगा और WP फॉर्म भी. इनकी SMTP डिफरेंट नहीं होती, सेम ही है. ओके, द वेरी फर्स्ट WP फॉर्म्स. ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है फॉर्म्स बनाने के लिए. इसमें भी बहुत से ऑप्शंस हैं, सर्वे भी कर सकते हैं और बहुत कुछ है इसमें. एंड देन कॉन्टेक्ट फॉर्म 7. ओके, राइट. ओके, नाउ वी विल इंस्टॉल द प्लगइन जिससे हमें अपनी SMTP करनी है. फर्स्ट स्टेप हमने मेल को क्रिएट किया, देन हमने अपने आउटगोइंग सर्वर्स देख लिया, और थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे हैं, अपना प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं. एंड दैट इज़ क्वाइट ईजी टू यूज़. वी हैव दिस फॉर्म और इसकी हम SMTP करेंगे. दीज आर द फील्ड्स, इन्हें फील्ड बोला जाता है. नेम, नंबर, ईमेल, सब्जेक्ट, टेक्स्ट एरिया. ठीक हो गया. फील्ड के ऊपर जो सब हेडिंग्स शो हो रही हैं, दीज आर लेबल्स. और इनका डाटा हमें यहाँ पे रिसीव होना शुरू हो जाएगा SMTP करने के बाद. ओके, इसके लिए हमें एक SMTP कनेक्शन बनाना पड़ेगा. दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजी. मैंने इस लेक्चर को डिटेल में इसीलिए बनाया है कि आप हर पॉइंट को, ईच सिंगल पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकें. दिस इज़ द बटन
आफ्टर फिलिंग द फॉर्म वी विल प्रेस दिस बटन और सारा डाटा जो है वो सेंड हो जाएगा आफ्टर SMTP। अभी हमारे फॉर्म की SMTP नहीं हुई हुई। आई एम जस्ट शोइंग यू कि हम इस तरह से कॉन्टेक्ट फॉर्म को फिल करते हैं। ओके, राइट, एंड देन सब्जेक्ट एंड देन टेक्स्ट एरिया। Okay, now we have to do the SMTP of REST fields. Let's see. पहले तो हम एक फॉर्म बनाना सीख लेते हैं एलिमेंटर प्रो से, फिर हम इसकी इजी SMTP कर लेंगे। आपको फॉर्म बनाने का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सो हियर यू कैन सी और फॉलो द स्टेप्स व्हाट आई एम डूइंग हियर राइट नाउ। यहाँ पे सिंपली अगर आपने एलिमेंटर प्रो को डाउनलोड किया हुआ है तो इट इज़ क्वाइट ईजी टू मेक द फॉर्म। आई एम मेकिंग इट फुल विड्थ। So here the form, just drag and drop. You can see all the fields are here. Now what we have to do, we have to give it some extra styling। आपको इसको स्टाइल करना पड़ेगा, जैसे आप अदर फील्ड्स को, अदर सेक्शंस को स्टाइल कर रहे होते हैं, उसी तरह से इसको मार्जिन दें, पैडिंग दें, इसको ब्यूटीफाई करें। ठीक है, आपने ऊपर देखा है जो फॉर्म बना हुआ है वो भी इसी मतलब प्लगइन से बना है, बट इट इज़ मोर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड टू द पॉइंट, ऑन द पॉइंट। तो आपको भी इसको ब्यूटीफाई करना है। यहाँ पे 3 फील्ड्स दी हुई हैं हमें, नेम, ईमेल एंड मैसेज। हम इन्हें सिंपली कॉपी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट मोर फील्ड्स। लेबल मैंने आपको बताया था जो ऊपर हेडिंग शो हो रही है, और प्लेस होल्डर क्या होता है जो हमें फील्ड के अंदर नज़र आ रहा है। फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट यूजिंग प्लेस होल्डर्स। द अदर थिंग आपने जो फील्ड्स के हवाले से अपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ टाइप। मतलब जब नेम और फुल नेम आ रहा है तो आप वहाँ पे टाइप जो है वो टेक्स्ट रखेंगे, बट इफ़ इट इज़ ईमेल तो वहाँ पे आप टाइप को चेंज करके ईमेल कर देंगे। जहाँ पे नंबर है वहाँ पे आप टाइप को चेंज करके नंबर कर देंगे। नाउ मैंने 2 फील्ड्स को 50-50 विड्थ दे दिए ताकि वो एक ही लाइन में अलाइन हो जाए। सो दीज आर अलाइन इन अ सिंगल लाइन नाउ। सो इन दिस वे आप इसको अच्छी तरह से स्टाइल कर लें। 50-50% वेट करके आप इनको अलाइन कर सकते हैं एक ही लाइन में। नंबर के लिए आपने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि इसकी टाइप नंबर होगी, ईमेल के लिए टाइप ईमेल होगी, और नेम या मैसेज या कोई सब्जेक्ट या टेक्स्ट एरिया तो उसके लिए सिंपल टाइप होगी, दैट इज़ टेक्स्ट। ओके, ओके, नाउ यू कैन सी कि सम फील्ड्स आर अलाइंड। उसकी थोड़ी सी पैडिंग कर लेते हैं, मार्जिन कर लेते हैं सेट, और बटन का कलर चेंज कर लेंगे तो इट विल बी क्वाइट बेटर देन बिफोर। इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ you are giving it styling. So now see, it's looking good. We will increase the rows gap, column gap, spacing, each and everything we can set from here. You can check in the styling tab. Okay, now it's looking good with columns gap, rows gap. Okay, I think now the style is good to go.
So now it's good to go. You can style the form in any way as you want styling according to your client demand, and that's it. So now it is done, and you can see the view. Okay, now move toward the plugins, and now we will install the plugin that will be used for SMTP, and I'm using the Easy SMTP as it is very convenient and easy to use. आई विल सजेस्ट कि आप भी इसी को यूज़ करें. डब्ल्यू पी फॉर्म की एस एम टी पी के लिए हम और भी प्लगइन यूज़ करते हैं, इस प्लगइन को भी यूज़ किया जा सकता है. तो अभी इस एलिमेंटर प्रो का जो फॉर्म बना है इसके एस एम टी पी के लिए, हम आप इसको नोट कर लें, इसका इंटरफेस देख लें. ये डब्ल्यू पी फॉर्म के लिए बेस्ट है, बट फॉर नाउ वी आर यूजिंग एलिमेंटर प्रो, तो उसके लिए हम ईजी एस एम टी पी, ईजी डब्ल्यू एस एम टी पी, दैट इज़ द प्लगइन आई एम गोइंग टू इंस्टॉल. इट्स इंस्टॉलिंग. Okay, it is installed, and now I'm going to activate it. So ओके, नाउ अब हम इसका सेटअप कर लेते हैं. अब हमें यहाँ पे आउटगोइंग सर्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी. होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. Just follow the same step I am doing, then there will be no problem. Like we will not use any of the above option as these are premium, so we will go for other SMTP. Save and continue. Then we will configure the mailer settings SMTP host as we have seen in the hosting. I have shown you SSL and SMTP host that were present in the outgoing server. And here we will use the username of email and username of and password of that same email. So I'm going to add SMTP host from the hosting that is here. I can copy from here. Yeah, smtphostinger.com, and that's it. Copy it, and I will paste it here. That's it. For SSL it is 465. Again reconfirm. Okay, good. And then uh, I just scroll down, and here I will put the same email I have created, username. I will take the username from here, copy, and then paste. Great. And then same password. SMTP password. Okay, now just scroll down, all the settings are done. The trouble will come if there will be a password problem. We will recheck the password. Mostly the trouble comes if we have some password issues. Let's see. Now just save and continue. Okay, for now skip this step. Okay, checker mailer configuration. Here's a trouble coming. Hopefully the password will be wrong. So let's recheck the password in the main settings panel. I'm going to the panel. Here you can see at the left side there is SMTP option. After that settings. Yeah, from here I can re-enter the password. Just scroll a little down. See at the left side. Okay, host is same, SSL is same. So hopefully the problem is in password. So I will re-enter the password. For TLS it is 587, but we are using SSL 465. Scroll down. Okay, the username is same. Inquiry at devsana.com. Okay, now we will change the password from here. The trouble is due to password. So be vigilant about using the password, hostinger paths, SSL. That should be same as it is. Otherwise, the problem will arise. So I have changed, and now let's save it.
Okay, I'm saving the settings, and now we will send a test email to check the SMTP connection has been made or not. So let's test the email. Okay, in the form we also have to give the same email. In the form settings, just go below and see here email, and into just put the same email, inquiry@devsena.com, and that's it. The same email you are using in the SMTP you will use at the form. Okay, now send test email, and let's see what's happened. The connection has been made or not. If the connection has not made, then the possibility is that, so this is the success. Thanks God, the SPF record required by your SMTP server working correctly. Congrats. And there is at the below a message, due to some protocols that might be arise from hosting, so our SMTP connection has been made. It is success. So let's see at the inbox of the web mailer, is there any notification? Yeah. Okay, that's great. The HTML test email has been received. Congrats, test email was sent successfully. It means your SMTP connection has been made between the form, between the website और the webmail. ठीक है, आपके फॉर्म में और आपके वेबमेल में एक SMTP कनेक्शन बन चुका है. नाउ आपका फॉर्म जो है वो डाटा उसके ऊपर जो आएगा क्लाइंट उसको फिल करेगा, वो सीधा इधर इनबॉक्स में आएगा. होपफुली बहुत से पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है, अभी हम ट्राई भी करेंगे एक फॉर्म का डाटा सेंड करके. सो हम इस फॉर्म को फिल करते हैं और देखते हैं कि इसका डाटा वहाँ पे जाता है या नहीं जाता. सो लेट्स स्टार्ट फिलिंग द फील्ड्स. ओके, हेलो देयर, I need your services, and let's send the button. Oh, your submission was successful. Okay, congratulations. It means your SMTP setup has been working and the connection is working very fine. So now refresh the inbox. If there is not a email, you can refresh maybe. Okay, you have received the data from the form. Congratulations, your SMTP connection has been made. See here, सेम फील्ड्स यू हैव रिसीव्ड हेयर विच वर इन योर फॉर्म. जो फॉर्म में आपने फील्ड्स बनाई थी, सेम फील्ड्स का डाटा आपको यहाँ पे मिल रहा है. इसी तरह से जब हम किसी शॉपिंग वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमें सेम हमारा डाटा इसी तरह से उनके ऑनर के इनबॉक्स में जाता है और हमारा पार्सल डिस्पैच होता है ड्यू टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो दैट्स इट. थैंक यू.